students, how are you? I hope all of you are okay. Be staying home, stay safe. So, as we have completed one chapter, human reproduction, where we studied the reproductive activities, reproductive structures, processes, fertilization, implantation, pregnancy, parturition, and ultimately lactation. I hope all of you are understood it very well. You have any doubt means you can ask me on my WhatsApp number. Okay, fine. Now today we proceed the new lesson, new chapter, that is the reproductive health. It is a next chapter after human reproduction under the same unit, which carry 5 marks. So today's introduction class it is. Whatever I am explaining today here, you just understand, listen it. No need any paper, pen, just listen carefully and understand. Then regarding notes, I will send it as PDF on your WhatsApp number in your group. Okay. So this is an introduction class. The lesson name or chapter name is reproductive health. Here, health and reproduction. See, biologically health is a process, is an activity where a new generation, a new offspring is going to be formed, reproduction. Then in reproduction there is a health. Health point of view, involvement of reproduction is there. To understand that, this chapter is decided. Say, health is one of the important thing. Our health is disturbed or improper, many reasons are there. By birth, genetic reasons, by surrounding, by food, by our activities, by our abuse, many things are involving to damage, to destroy, to unfit our health. Same thing, somewhere the reproduction is also one of the cause, one of the reason for our improper health or unhealthy. To overcome those problems, this chapter is going to be decided in your syllabus as reproductive health. So WHO, nowadays the word is more popular, more observing you people in the newspapers and in the TV channels, news channels, because of the current problem is coronavirus. Because of that, often we are listening the word WHO. So what is this WHO? WHO is a World Health Organization. एक संस्था है, एक संगठन है जो वर्ल्ड, दुनिया की हेल्थ पे इसकी नज़र होती है, उसको देखता रहता है ये कि वर्ल्ड की हेल्थ कैसी है, लोगों में कौन सी बीमारी है, लोग कितने मर रहे हैं, कितने पैदा हो रहे हैं, लोगों की हेल्थ के बारे में केयर करने वाला संगठन को कहते हैं हम WHO. सो WHO क्या कहता है हमारी समाज में, हमारी सोसाइटी में लोगों का जो रिप्रोडक्शन को लेके अपनी सेहत, अपनी हेल्थ को ख़राब कर लेना भी एक चीज़ समझ में आई सो है. द पीपल आर डिस्ट्रॉइंग, आर अनहेल्थी बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्शन. तो उस चीज़ को ना होने दे, उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ये चैप्टर को बनाया गया है स्पेशली फॉर यू पीपल. सो अकॉर्डिंग टू WHO, reproductive health is total well-being in all concepts of the reproduction. Total सारे all concepts of the reproduction के सारे concepts में हम फिट होना चाहिए reproductively. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल, ये 4 वो एस्पेक्ट्स है रिप्रोडक्शन के. ये 4 वो चीज़ें जो हमारे रिप्रोडक्शन को लेके, ये 4 चीज़ें हमसे ख़राब हो सकती हैं. तो
तो WHO का कहना यही है, हम टोटल वेलबींग होना चाहिए इन चारों में, रिप्रोडक्टिवली, तभी एक हम हेल्दी सोसाइटी बना पाएंगे और हम हेल्दी रह पाएंगे। अब हम इन चारों को अगर सोच समझने जाएंगे, इन चारों को अगर हम देखेंगे, तो फिर जैसे कि पहले है फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। एक बहुत कॉमन वर्ड है ये, आप इजीली समझ में आएंगे। फिजिकली जब हम एडोलेसेंस हो जाते हैं, जब हम यंग हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तो फिजिकली यस, वहीं से ही हमारा रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है, वहीं से हमारी सोच बदलती है। तो कहाँ की जाकर हमारे माइंड पर, हमारे फिजिकल पर, हमारे फिजिकल बॉडी पर रिप्रोडक्शन का प्रभाव, रिप्रोडक्शन का इफेक्ट हो सकता है, इसको बच्चा अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, तो ये कहाँ की जाके अपनी हेल्थ को ख़राब कर सकता है। देन कम्स इमोशनल। इमोशन तो जुड़े हुआ ही है हमारे साथ, तो वहाँ रिप्रोडक्शन को लेके ऐसा कोई इमोशन नहीं है, यस, साइंटिफिकली ऐसा कोई इमोशन नहीं है, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग है, इमोशनल एनिमल है, तो हमारे इमोशन में वहाँ रिप्रोडक्शन भी है। हम प्यार करते हैं, हम लव करते हैं। अब प्यार लव कितने हद तक सही है गलत है वो अलग चीज़, अलग बात है, लेकिन वहाँ उससे हम मिस बिहेवियर बहुत करते हैं, मिस एक्टिविटी बहुत करते हैं। कहते हैं वो लव होना, ब्रेकअप होना, वो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे सोसाइटी में। वहाँ लड़का लड़की सुसाइड जैसे अटेम्प्ट, और कुछ अपनी हेल्थ को ख़राब कर लेना, अब्यूज़, सिगरेट पीने लगना, शराब पीने लगना, माँ बाप का कहना नहीं मानना, ऐसी चीज़ें करते जो हमारा इमोशनल से जुड़ा हुआ होता है। उसी का ही दूसरा फेज जो होता है बिहेवियर, वही उसमें से ही निकल कर आता हमारा बिहेवियर। जब हमारा रिप्रोडक्शन को जब हम सही नहीं समझे, रिप्रोडक्शन की एक्टिविटी को हम गलत तरीके से अगर लेंगे, तो हमारा बिहेवियर बदल जाता है। अब ये फिजिकल, इमोशनल बिहेवियर जब खराब हो जाएगा, तो ऑफ कोर्स हमारी सोसाइटी खराब हो जाएगी, यानी कि हमारा सोशल खराब हो जाएगा। तो इन चार चीज़ों में हम फिट होना चाहिए रिगार्डिंग आर कंसर्न विद द रिप्रोडक्शन, कहता है WHO। अकॉर्डिंग टू WHO वी हैव टू फिट इन ऑल दिस 4 कॉर्नर्स कंसर्न विद द रिप्रोडक्शन। ओके, तो वो क्या प्रॉब्लम है जो हम आपको रिप्रोडक्शन से होते हैं? ऐसे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है वहाँ पर, लेकिन हमारे सिलेबस में जो दिया गया है, रिप्रोडक्शन से होता क्या? यस, ऑफ कोर्स हमें पता है, द यंग न्यू बेबीज आर गोइंग टू बी फॉर्म, न्यू बेबीज आर गोइंग टू बी फॉर्म, रिप्रोडक्टिवली वी आर प्रोड्यूसिंग यंग वंस, मोर यंग वंस। जब यंग वंस मोर हो जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा? यस, वो आप जानते हैं, पॉपुलेशन। Population is one of the biggest problem for many other problems. बहुत सारे प्रॉब्लम की पॉपुलेशन बहुत बड़ी समस्या है। अब ये पॉपुलेशन होती है बर्थ से, और बर्थ होता है रिप्रोडक्शन से। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ऐसे और भी कई सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही तो ये चैप्टर बनाया गया है, और आप लोगों के सिलेबस में रखा गया है। To solve this problem, reproduction, there are many strategies. One of the strategy that is the family planning. Family planning करने के लिए हमारे WHO का regulations में है, हमारे regulations में है, और family planning एक one of the most important things to control the overpopulation. तो family planning शुरू की गई थी इंडिया में in the year 1951 में, ताकि लोगों में अवेयरनेस आए, स्मॉल फैमिली का लोगों में अवेयरनेस आए। वो बोलते ना, चिक्का संसारा चौका संसारा, उसके बारे में लोगों को बोलो, समझाओ। और उसी से जुड़ा हुआ एक प्रोग्राम बनाया गया जिसका नाम था रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। वॉज स्टार्टेड इन इंडिया इन द ईयर 1997 में बनाया गया। उस प्रोग्राम के मुताबिक, उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वहाँ बहुत सारे एक्टिविटीज़, अवेयरनेस, जनरल पीपल में अवेयरनेस लाया गया। बहुत सारे मदर्स और चाइल्ड्स को इस बारे में बोला गया, समझाया गया, ताकि वो रिप्रोडक्टिवली बच्चे कितने पैदा करें और कैसा रखें, एजुकेशन दें। इन सारे चीज़ों को कंसल्ट किया गया इन द प्रोग्राम
रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जिसको हम RCH कहते हैं। RCH का फुल फॉर्म एग्जामिनेशन में कभी पूछा गया सो है फॉर 1 मार्क्स के लिए। अब बात होने जाने वाली है कि नीड एंड नेसेसरी ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स में हम सेक्स एजुकेशन देने की क्या ज़रूरत है? जी हाँ, ज़रूरत है। बच्चे ही वो चीज़ है जो कल लाने वाले हैं। बच्चे से ही कल आता। तो कल हमारा बेटर अगर होना है तो हम आज के बच्चों को एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छी इंफॉर्मेशन दें। इसलिए ही सेक्स एजुकेशन बच्चों को देना एक ज़रूरी समझा गया है, हायर एजुकेशन में देना ज़रूरी समझा गया है। तो उसको देने के कई सारे रीजंस हैं। पहला ये रीज़न है, प्रोवाइडिंग ए राइट इंफॉर्मेशन अबाउट द सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट्स। बच्चे हैं, जब एडोलेसेंस हो जाते हैं, जब यंग हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तो अपने बॉडी के भीतर बदलते हुए अंगों को देखकर, बदलते हुए हरकतों को देखकर वो थोड़ा सा बदल जाते हैं। तो उनको उस बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना, राइट इंफॉर्मेशन अबाउट सेक्स रिलेटेड कौन सा भी एस्पेक्ट हो, यही वो एज है, स्कूल लाइफ यही वो एज है जहाँ पर हम बच्चों को ये चीज़ की ज़रूरत है, इसको समझाया जाता है। एक चीज़। दूसरी, टू प्रोवाइड ए प्रॉपर इंफॉर्मेशन, मिस थिंग्स रिगार्डिंग सेक्स मिथ्स एंड मिसकंसेप्शंस। सेक्स को लेके, रिप्रोडक्शन को लेके हमारी सोसाइटी में बहुत सारे मिथ्स हैं और मिसकंसेप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, एक कपल है, अगर उनको कई सारे दिनों से अगर चाइल्ड नहीं हो रहे, बच्चे नहीं हो रहे, तो वहाँ हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में ये देखा गया है, उसका ब्लेम सीधा सीधा फीमेल पे ही जाता। ऐसे हमारे सोसाइटी के कई सारे फीमेल्स पे ऐसा अत्याचार हुआ है ऑलरेडी। अरे भाई, अगर बच्चे नहीं हो रहे वहाँ पर, तो फीमेल ही का उसका वजह नहीं है, वहाँ मेल भी है, मेल का भी कुछ डिफेक्ट हो सकता है। यही बात को समझाने के लिए तो ये बनाया गया है, यही बात को लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर डिसाइड किया गया है, दैट टू टीच अप टू द स्कूल लेवल और हायर एजुकेशन लेवल स्टूडेंट्स। देन प्रोवाइडिंग ए necessary information regarding changes in the reproductive organs, sexual practices, hygienes, and sexual transmitted diseases like AIDS। तो इन सारे चीज़ों के बारे में हमें बच्चों को समझाना है या बताना है ये चैप्टर में, ठीक है। तो आगे भी ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं इस चैप्टर में। सो स्टूडेंट्स, आप क्या कीजिए, अभी इस इंट्रोडक्शन का जो पोर्शन है, इंट्रोडक्शन का जो राइटिंग मटेरियल मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, इसका फ़ोटो आप बस उतना ही पढ़िए। और आपको अगर पढ़ना है तो आप जीवित, आपके पास घरों में जीवित है, उस जीवित का आप स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन पॉइंट पढ़ लीजिए, उतना इनफ है। एंड रिगार्डिंग द फर्दर पॉइंट्स वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।